انتخابات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا بڑا دنگل 6 اضلاع کی 10 نشستوں پر 68 امیدوار مد مقابل، 167 پولنگ سٹیشنز قائم، 136 انتہائی حساس، 26 حساس، 5 نارمل قرار، 4 چیئرمین، 2 وائس چیئرمین، 4 جنرل ممبر وارڈ کی نشستوں پر ووٹنگ۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ضلع وسطی UC 7 لیاقت آباد میں چیئرمین کے لیے 8 امیدوار مد مقابل، پیپلز پارٹی کے محمد وقار، جماعت اسلامی کے سلیم اللہ میں کانٹے کا مقابلہ، UC 9 ملیر بختیاور میں UC چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی کے بابر مگسی اور جماعت اسلامی کے نعمان احمد میں جوڑ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے نمائندے نعمان گل، اقصی شاہد، میر کریو مختلف حلقوں میں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں، وہاں کیا گہما گہمی ہے یہ ان سے جانتے ہیں۔ جی سب سے پہلے رخ کریں گے سید نعمان گل کی طرف۔ جی نعمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، میں اس وقت کورنگی میں موجود ہوں۔ کراچی کے جو ہے وہ 10 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ کورنگی میں 3 نشستوں پر جو ہے وہ انتخاب ہو رہے ہیں، جبکہ کنٹونمنٹ بورڈ کورنگی میں جو ہے وہ 1 نشست ہے۔ 3 نشستوں میں جو ہے وہ UC 7 وارڈ نمبر 1 کی نشست ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، TLP اور تحریک انصاف مد مقابل ہیں، جبکہ UC 6 لانڈی UC 6 وائس چیئرمین کی نشست پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ ماڈل کالونی کی جو چیئرمین کا انتخاب ہے وہاں پر جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں ہے۔ اور میں اس وقت کورنگی میں موجود ہوں، UC 7 وارڈ نمبر 1 پولنگ اسٹیشن نمبر 5 اور 6 کے باہر میں موجود ہوں، جہاں پر ووٹنگ کا عمل آج صبح 8 بجے سے شروع ہوا ہے اور ووٹرز کی آمد کا سلسلہ اب جاری ہے۔ اب سے کوئی تقریباً 3 سے 4 ووٹ اس وقت جو ہے وہ کاسٹ کر دیے گئے ہیں۔ ٹوٹل ووٹرز کی جو تعداد ہے UC 7 وارڈ نمبر 1 میں وہ 14,782 ہے، جس میں جو ہے وہ مرد ووٹرز کی تعداد 8,112 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 6,670 ہے۔ اور UC 7 وارڈ نمبر 1 میں مجموعی طور پر پولنگ اسٹیشنز کی تعداد 8 ہے، اور اس نشست پر جو ہے وہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 7 امیدوار مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی قریشی ہیں، جماعت اسلامی کے جو ہے وہ کامران سولنگی اس میں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ PTI اور TLP کے جو امیدوار ہیں محمد حنیف وہ بھی اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کورنگی کے عوام کس پر بھروسہ کرتی ہے، کس پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے، کون سی سیاسی جماعت کو ووٹ پڑتے ہیں اور کون سی سیاسی جماعت UC 7 وارڈ نمبر 1 کو جو ہے وہ ون کرتی ہے۔ جی نعمان گل، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہ ماڑی سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے میر کریو نے۔ جی میر کریو، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں جی بالکل کراچی کی طرف ضلع کیماڑی میں بلدیہ ٹاؤن میں UC 10 ہے، UC 10 کا وارڈ نمبر 4 ہے، جہاں پر جنرل کونسل کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور آزاد امیدوار مد مقابل ہیں۔ اگر ووٹرز کی بات کی جائے تو یہاں پر صبح 8 بجے سے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس علاقے میں 3 پولنگ اسٹیشن ہیں، جبککہ اگر ووٹرز کی بات کی جائے تو 5,458 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں 3,169 مرد ووٹرز ہیں، جبکہ اگر خواتین ووٹرز کی بات کی جائے تو 2,289 خواتین ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے ضلع کیماڑی میں آتا ہے، بلدیہ ٹاؤن لگتا ہے، جبکہ UC 10 اور وارڈ نمبر 4 ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ یہ پولنگ جو ہے شام 5 بجے تک جاری رہے گی، اس کے بعد جو ہے باضابطہ طور پر نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ پولنگ اسٹیشنز کی اگر بات کی جائے تو وہاں بھی ہمیں بڑی تعداد میں رش نظر آتی ہے، کافی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے، کام کا بھی وقت ہے، تو اسی حساب سے لوگ بھی آ رہے ہیں، اپنا ووٹ بھی داخل کر رہے ہیں۔ خواتین کی بات کی جائے تو خواتین بھی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہی ہیں، گھروں سے آ رہی ہیں۔ تقریباً تینوں پولنگ اسٹیشنز پر ہمیں رش نظر آتا ہے، جبکہ اگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنی کیمپس کی بات کی جائے تو تینوں جو سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی،
पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातें, उनकी तरफ से अपने कैंप वगैरह भी कायम किए गए हैं। वो लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कैसे वोट डालना है, उस हिसाब से भी यहाँ पर मुहिम जारी है। जबकि अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो इस बार जो 5 उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जो उम्मीदवार हैं वो बड़ा मुतहरक नज़र आ रहे हैं। वोटर्स को जो है अपनी तरफ ला रहे हैं कि वो अपने अपने जो सियासी बयानात हैं, सियासी जो उनका नुक्ते नज़र है वो उन्हें बता रहे हैं कि हम किस तरह से इलाके में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर शहरियों की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि इस इलाके के काफ़ी मसाइल हैं, क्योंकि बल्दिया टाउन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ख़ास तौर पर पानी का मसाइल है, यहाँ पर गैस बिजली के मसाइल है। सड़कों की बात करें तो सड़कें टूट फूट का शिकार है। तो यही इल्तिजा लेकर लोग आ रहे हैं कि हम वोट तो देंगे लेकिन सबसे जो बुनियादी मसला है वो पानी का है, वो हल किया जाए। इलाके की सड़कें टूट फूट का शिकार है, उनकी तमीर जो है करवाई जाए। अगर इससे इलाके की बात की जाए तो वार्ड नंबर 4 पर इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे आसिफ खान, वो भी यहीं पर काउंसलर की नशिस्त पर जीते थे। लेकिन 1 साल कबल उनके जो है वो उनका मौत वाक़ हो गया था, जिसके बाद ये नशिस्त खाली हो गई थी। आज यहाँ पर जो है इलेक्शन जारी है। जी मीर किरियो, आप हमारे साथ रहिएगा। लियाकताबाद से हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। जी अक्सा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात की खाली नशीसों पर इंतखाबात का सिलसिला जो है वो आज फिर से जो है वो जारी है। इंतखाबात के लिए जो है वो उम्मीदवारों का जो है वो दंगल सा चुका है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हमें मुतादिद अजला में जो है वो आमने जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त जिस यूसी में मैं मौजूद हूँ, ज़िला वस्ती लियाकताबाद 7 में, जहाँ चेयरमैन के इंतखाबात के लिए जो है वो उम्मीदवार जो है वो कांटे का मुकाबला जो एक दूसरे को दे रहे हैं। जिसमें हम बात कर लेते हैं ज़िला वस्ती लियाकताबाद में मोहम्मद वक़ार और सलीमुल्लाह की। तो ये जो उम्मीदवार हैं ये आमने सामने है। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वक़ार इस वक्त जो है वो यहाँ के मजबूत उम्मीदवार जो हमें नज़र आते हैं। जबकि माजी में अगर हम बात करें तो जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो यहाँ से जीते थे, इस वक्त भी जमात इस्लामी के उम्मीदवार यहाँ पे जो खड़े हुए हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ की आवाम है वो इस बार जो है पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि माजी हमने देखा कि लियाकताबाद की सूरत हाल में जो है वो यहाँ पे खासा फर्क जो है वो नहीं देखा गया। वही सड़कें जो वो टूट फूट का शिकार है, ज़्यादा मरम्मती काम हमने देखा यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ की जो गलियों में सीवरेज का निज़ाम है, जो यहाँ पर कचरों का निज़ाम है, उसको बेहतर नहीं किया गया। लिहाजा जो वोटर्स होते हैं वो अपने उम्मीदवार से ये तवक्का करते हैं कि वो आएंगे तो उनके इलाके को जो वो बेहतर करेंगे, उनके इलाके के मसाइल हल करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुताबिक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो हमें ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। बात कर लेते हैं इलेक्शन की, तो यहाँ पर जो इलेक्शन सुबह 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ था, उसमें देखा जा रहा है कि आपको मेरे रकम में इस वक्त जो है वो पोलिंग एजेंट जो है वो अभी आते हुए नजर आ रहे होंगे। लिहाजा 9:30 के करीब का जो ये वक्त हो गया, लेकिन यहाँ पर अब तक पोलिंग एजेंट्स जो है वो काफ़ी ताखिर से पहुंचे। लिहाजा प्रिजाइडिंग अफसर की बात करें तो वो भी यहाँ पर जो काफ़ी ताखिर से 8:30 बजे के बाद जो यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर पुलिस का अमला जो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ था। लिहाजा ये बात कर लें कि जो यहाँ पर वोटर्स आए थे, वोटर्स का ये कहना है कि वो यहाँ पर आके जो वो खड़े रहे हैं। यहाँ पर पोलिंग एजेंट नहीं थे, प्रिजाइडिंग अफसर ने जो है वो उनको रूम से बाहर खड़ा किया हुआ था कि जब तक पोलिंग एजेंट नहीं आएंगे तो वोट कास्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने रूम, अपने बूथ जो है वो देख रहे हैं कि कौन से बूथ में जो उनकी ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ पर जो वो सीरियल नंबर के मुताबिक जो वो देखा जा रहा है कि कौन से बूथ में जो वो यहाँ पर कौन सा पोलिंग एजेंट जो वो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर अब तक भी जो है ये देखा जा रहा है। तो बल्दियाती इंतखाबात हम ये देखते हैं कि वर्किंग डे है, तो यहाँ पर वैसे भी जो वोटर्स का टर्न आउट है वो काफ़ी जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहेगा। लेकिन जो अमला है वो भी यहाँ पर जो काफ़ी ताखिर से देखा जा रहा है। लिहाजा ये देखा गया है कि जो कराची के 6 अजला में जिनमें इंतखाबात है, तो उसमें 3 अजला में जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो आम तारीख का भी जो ऐलान किया गया है, जिसमें जो है वो मंगोपीर जिला गरीब शामिल, जिला साउथ शामिल है और जिला कोरंगी शामिल है, जहाँ पर जो है वो 2 से 3 नशिस्तों के जो इंतखाबात जो आज देखे जाएंगे। लियाकताबाद में लिहाजा देखा जा रहा है कि चेयरमैन और जिला वस्ती गुलबर्ग यूसी 5 के लिए जो वाइस चेयरमैन के इंतखाब जो है वो आज हो रहे हैं। लेकिन उसमें अब तक जो हम देख रहे हैं कि वोटर्स का टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा। जो अमला है वो खुद भी ताखिर का शिकार है। वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त जिला वस्ती में ही देखी जा रही है। लियाकताबाद की अगर हम बात कर लें तो इसमें 58,931 वोटर्स की जो यहाँ पर जो वो बनाए गए हैं पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ। जबकि गुलबर्ग की अगर हम बात करें तो 62,537 पोलिंग स्टेशन वोटर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि लियाकताबाद में 31 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें से 21 को इंतहाई हसास जो है वो करार दिया गया है। और गुलबर्ग टाउन की अगर हम बात कर लें उसी 5 के, तो गुलबर्ग में जो है 39 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए, जिसमें से 31 को जो है वो हसास करार दिए गए। लिहाजा हमने माजी में ही देखा कि यहाँ से जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार
उम्मीदवार जो बला मुकाबला बआसानी से जो वो जीत गए थे, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मुकाबला जो है वो सख्त होता जा रहा है। वोटर यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन वोट कास्ट करने से जो है वो यहाँ पर कासिर है। जी जी अक्सर शाहिद, आप हमारे साथ रहिएगा। आपसे मजीद लियाकताबाद के पोलिंग स्टेशंस के हवाले से तफसीलात जानेंगे। नोमान, ये बताइएगा कि पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी इंतजामात कैसे हैं? अच्छा, यकीनी तौर पर कोरंगी में मैं मौजूद हूँ और कोरंगी में तकरीबन कोई 30 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इस यूसी 7 में कोई तकरीबन 7 पोलिंग स्टेशंस हैं, जबकि जो अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तमाम पोलिंग स्टेशंस की तो वो तमाम पोलिंग स्टेशंस को कोरंगी के मिलाकर ये कोई 57 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशंस बनते हैं और ये तमाम के तमाम जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर 8 से 10 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं क्योंकि तमाम पोलिंग स्टेशंस को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इंतहाई हसास करार दिया गया है कोरंगी के। तो इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर पुलिस के जो तकरीबन एक पोलिंग स्टेशन है उस पर 8 से 10 जो एहलकार है वो तैनात है। न सिर्फ जवान जबकि खवातीन एहलकार भी इसमें शामिल है जो कि खवातीन पोलिंग बूथ्स के बाहर मौजूद है, जो कि जो है वो